It is group discussion. Okay, what is debate then? Okay, fine. I got your point. I will be giving the example also. Close the door properly. Na? Anyone else? What is, huh? Debate means counter the question or the answer. That is debate. That means you will be standing somewhere and people will be asking and you will be going to give the answer of that one. So you will be counter up questions, you will be giving the answer of that one. That will be your debate. Then what is group discussion? In any topic, all people are giving the ideas. Okay. So according to your point of view, have you ever given a debate in school or college competitions? Anyone have given that one? So is actually people are asking the questions, you are countering the same question to him, or you are giving the answer onto that one? Is it actually happening? To public, because you got a topic on that slide, you used to give the your opinion to the public. Okay, it is happening. Anything else? According to his point of view, he said that group discussion you need to stand in the stage and you are going to give your opinion. But in the group discussion, you need to sit in a number of group and you are going to give the opinion. Is it actually like this? Wait, huh? Exactly, they will be providing the topic. It is not gossiping. Now, what you feel, it is gossiping. So obviously, they are going to give a topic, but this is not exactly. Have you seen political debate? You have not seen that on in televisions. So what exactly happening from different parties? People are there. They are standing here. Yes or no? That means number of people are there. They are standing there and they are discussing. They are giving the answer of public questions. So it is debate or group discussion. But he said if number of people will be there, then it is group discussion. It is one by one, huh? The topic is mostly group discussion. How the topic is suppose how it is impact on society as well as economically, Okay. and which is legal or illegal. Okay. No, not exactly. बहुत टाइम ले लेगा, हाँ. वो तो थोड़ा सा कंपनी डायरेक्टली चले गए. वो तो आप अंदर चले गए. No, not exactly. Let me say. For example, this is two remotes, right? Is there any difference between two remotes? एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, क्या नो? One is properly working, one is not working. Means very thin line difference between two remotes. Yes or no? It looks very similar. The steps are also similar, but few a thin line difference is one remote is working, one remote is not working. Exactly same. There is only thin line difference between group discussion and debate. What is that one? In group discussion, number of people are there, they are participating. In debate also, number of people can be there, they can participate. That is called group debate. There is no difference according to the numbers. Regarding the topic, in debate, we are getting one topic, we need to choose only one side, either this side or that side. For example, pros and cons, advantages and disadvantages. We need to choose only one side, yes or no? Group discussion also the same. We cannot choose both the side. We need to choose only one side, either this side or that side. Clear? That means there are similarities in between group discussion and debate. Then what is the major difference? Turn on the fan or slow down that one. Right. So what is the major difference between group discussion and debate? Nothing. There is no major difference in between group discussion and debate. Only thin line difference. What is that one? You cannot show your aggression in group discussion, but you can show your aggression in the debate. You might have seen few people, they used to show their aggression to prove their point. But that will happen in the group discussion, in the debate only. In the group discussion, we cannot show our aggression. Clear? यानी कि ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. डिफरेंस क्या होता है? बस इतना ही होता है कि ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या होता है? आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते हो, लेकिन आप डिबेट में अपना एग्रेशन दिखा के अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो. क्लियर? So this is the major difference between group discussion and debate.
Right now my next question is, group discussion is a screening round or it's a selection round? Group discussion में क्या होता है? Selection होता है या screen किया जाता है, screen out किया जाता है? Why you do feel this is a screening round? That is not screening round. Screening round means I do have a checklist. For an example, I do have a checklist here, right? I do have some checklist. For an example, checklist number 1, checklist number 2, checklist number 3, and checklist number 4. I am having my criterias. So when you will be there participating in the group discussion, screening round means I am going to make a check mark, tick mark onto that one. If you have the skill, then you are going to select for this round. If you are not having the skill, you are going to be disqualified or you are going to reject in this round. That is called screening round. Selection round means from this number of batch, for an example, 10 members are there. Knowingly, I need to eliminate 5 members because I require more 5 members only. So knowingly, I am going to reject. Screening round means out of this 10 members, I may select 10 out of 10. I may select 5 out of 10. I may select 2 or 1 out of 10. If you have the skill, we are going to select you. That is called screening round. Selection round means we are going to find out only 5 potential players out of this 10 members. Clear? So group discussion is a selection round, sorry, screening round or a selection round. क्या होता है? Then what are the skills or abilities are screened out in this group discussion? Confident, okay, fine. Performance, okay, performance is also very similar to a confident. Okay, anything else? Not ideas. Why not ideas? Because from this topic, what the idea you will be sharing, it is not connected to the company's policy. You can share the way of generating the ideas. Okay, anything else? Your opinion. Opinion is also your way of thinking the ideas. Okay, fine. Anything else? अरे सही बोल रहे हो, कुछ तो बोलो. Grooming is not connected. हाँ, आपका वहां पे बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है, बट नॉट ग्रूमिंग. हाउ? You cannot say reaction, the behave. The behave you shown to your group members or your team members, that is also going to be count. First of all, group discussion is an integral part of an interview process. Maximum interview is going to be happen, or maximum recruiter, they are conducting the group discussion to find out something. What is that one? The managerial abilities within a candidate. Group discussion, generally it may be the second round of a group discussion. Why second round? In the first round, they may be conduct the written test. कुछ कंपनी भी ऐसे आते हैं, फर्स्ट क्या होता है वहाँ पे, दे आर कंडक्टिंग द रिटन टेस्ट. अगर रिटन में क्वालिफाई हो गया तो मॉडर्न टेस्ट या मॉडल या प्रैक्टिकल टेस्ट होता है. फॉर एडिशियंसी इट मे बी प्रैक्टिकल टेस्ट और मॉडल टेस्ट, समथिंग लाइक दैट वन, वो भी होता है. उसके बाद क्या होता है आपका, इफ ये दोनों आपका क्लियर हो गया, क्वालिफाई हो गए, नेक्स्ट इज योर ग्रुप डिस्कशन. फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन दे आर गोइंग टू स्क्रीन आउट द एबिलिटीज और पोटेंशियल्स. इफ यू क्वालिफाई द ग्रुप डिस्कशन, लास्ट राउंड विल बी योर व्हाट, पर्सनल इंटरव्यू, पीआई राउंड. उसके बाद भी खत्म नहीं होता है, कुछ कंपनी और भी आपके ऊपर टर्चर करते हैं. क्या करते हैं? अरे एचआर होता है, एचआर और टेक्निकल दोनों मिला के आपका पीआई राउंड होता है. उसके बाद आपका एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट. इट मे बी हैपन बिफोर द पीआई, इट मे बी हैपन आफ्टर द पीआई. यानी कि आपको साइकोलॉजिकली चेक किया जाता है कि आपका मेंटल कंडीशन कैसा है. आर यू फिट फॉर दिस जॉब रूल और योर मेंटल कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर जॉब रूल. आप तो क्वालिफाई हो जाएगा सारी चीज़ें में, लेकिन जो जॉब रूल आपको मिल रहा है, आर यू एक्चुअली फिट फॉर दैट वन और यू आर नॉट फिट फॉर दैट वन, इट इज गोइंग टू बी फाइंड आउट. तो ये भी आपका उसके बाद होता है. मैं आपको प्रोसीड्यूर बता रहा हूँ, कितने सारे आपका स्टेजेस होते हैं, राइट. उसके बाद आप जो बोले ना कि पीआई भी दो तरह का हो सकता है. वंस टाटा यहाँ पे एक बार आया था, राइट. टाटा में क्या हुआ था ना, ही हैव कंडक्टेड हिज पीआई पर्सनल इंटरव्यू इन 2 राउंड्स. एक कमरा था जहाँ पे एचआर बैठे थे, एक कमरा था जहाँ पे टेक्निकल वाले बैठे थे. तो आप क्या करोगे, पहले टेक्निकल में जाओगे, अगर टेक्निकल में सिलेक्ट होते हो तो एचआर में जाओगे, नहीं तो यहाँ से घर जाओगे.
और यहाँ पे जो कंपनी और भी कुछ कंपनी आते हैं क्या होता है टेक्निकल एचआर साथ में ही बैठे रहते हैं, साथ में आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट में आपको मेल आता है, इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड आपको कंग्रेचुलेशन लेटर मिल जाता है। अगर आप सिलेक्शन नहीं होते हो तो आपको कुछ मेल नहीं आता है, आपको प्लेसमेंट से पता चल जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इट वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। याद रखना हर कंपनी का पॉलिसी अलग अलग होता है। मैं अगर आपको लेटर बताऊंगा ना, कितने सारे लेटर्स होते हैं, अगर आप सिलेक्शन होता है ना 6 तरह का लेटर आपको मिलता है। पहले होता है आपका इंटीमेशन लेटर, उसके बाद होता है आपका कंफर्मेशन लेटर, फिर आपका ऑफर लेटर आता है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, फिर आपका कंफर्मेशन लेटर। कितना तरह के लेटर होते हैं। हर कंपनी फॉलो नहीं करते, कुछ कंपनी फॉलो करते हैं, कुछ कंपनी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द थिंग्स आर देयर एग्जैक्टली हैपनिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू कैन बी अवेयरनेस ऑन टू दैट वन। तो ये सारी चीज़ें बाद में कभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? That means group discussion is compulsory in a very, if you are going to apply with a good in a good company, they are compulsory, they are going to conduct a group discussion. वो आपका यहाँ पे कंपलसरी होता है और यहाँ पे नहीं होता ना। वाई? बिकॉज यू आर राइट नाउ ग्रैबिंग द प्लेसमेंट्स। आफ्टर प्लेसमेंट व्हेन यू विल बी अप्लाइंग फॉर व्हाट ये पर्सनल कंपनीज और पर्सनल इन प्लेटफॉर्म यू विल बी अप्लाइंग, they are going to conduct a group discussion. It may be online group discussion, it may be offline group discussion. As I have said, discussed earlier, that online group discussion is way different than your offline group discussion. क्योंकि offline group discussion में राउंड यहाँ पे होता है, online group discussion में सारा राउंड एक ही साथ में होता है। We'll be discussing later on. Clear? तो पहले क्या होगा आपका ग्रुप डिस्कशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ग्रुप इंटरव्यू प्रोसेस व्हिच मे बी कंडक्ट सेकेंड राउंड और मे बी थर्ड राउंड इन ए ग्रुप डिस्कशन इन ए इंटरव्यू प्रोसेस, राइट? What is why actually a recruiter or a company conduct the group discussion? To find out the managerial abilities within a candidate. Do that person or do that candidate actually having the managerial ability or he is not having? Why? Because right now he may be the member of a team. Right now maybe he is a what you can say a person of a team, but maybe later on he can be the team leader. If he is not having the ability to be a manager, or maybe if he is not having a ability to maintain the team properly, he may be a member, he may be a leader, he cannot do that one. It is not like that कि आप member हो तो आपके पास leadership quality का नहीं चाहिए होता. It is not like that one. If you may be a member, you may be a what? Team leader. Managerial ability is highly required to make a smooth flow of your team. क्लियर? तो इसलिए आपका क्या होता है टू फाइंड आउट द मैनेजरियल एबिलिटी ए कंपनी यूज टू कंडक्ट द ग्रुप डिस्कशंस। राइट नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मैनेजरियल एबिलिटी? मैनेजरियल एबिलिटी क्या क्या होते हैं? देयर आर 5 मैनेजरियल एबिलिटीज। व्हाट आर दे? फर्स्ट मैनेजरियल एबिलिटी इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। इफ यू वांट टू राइट डाउन आल्सो राइट डाउन दैट वन। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल। communication skill. What happened? You require a pen? हाँ, बाहर जाना है? चल, बंद करना है? कहना स्टॉप दिस वन। इसलिए बोलता हूँ रिमोट लेके आओ, आपके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। इसका फैन ज़्यादा है, फैन का स्पीड ज़्यादा है। एक ही एसी से चल जाएगा, कहना टर्न ऑफ द फैन ना, टर्न ऑफ द एसी ऑल्सो, क्योंकि एक एसी से वहाँ पे चल जाएगा शायद। अगर नहीं होगा तो फिर शान करेंगे। I know that one. That's why I said to at least bring the remote. Write down. First, write down communication skill. Give a heading group discussion and write down group discussion is an integral part of interview process. Group discussion is an integral part of your interview process which screened out the managerial abilities within a candidate. Group discussion is an integral part of your interview process which screened out the managerial abilities within a candidate. Write down, give a heading of managerial abilities. What are the managerial abilities are there? And the managerial ability, write down first one is communication skill. Second one, leadership skill. Within a candidate. Managerial ability within a candidate. ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ହଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ହଉ ଦେଖିବି ପଛରେ। ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍।
Managerial ability within a candidate, what are they? First one is your communication skill, second one is your leadership skill, third one write down rational thoughts, RATIONAL, rational thoughts. RATIONAL, rational thoughts. RATIONAL, rational thoughts. After knowing body language, if you will be sitting like this, then what is the matter of learning all the things? आपका नहीं, बाकी हाँ. Second, leadership quality. Third is your rational thoughts. Fourth one, write down logical and analytical thinking. Logical and analytical thinking. जल्दी लिखो. Logical and analytical thinking. Fourth लिखो group behavior. Sit properly ना, sit properly. After knowing body language, if you will be sitting like this. आपको ही बोल रहा हूँ, sit properly. He do feel he is in the comfortable position. As I said, na, subconsciously if you will be sitting like this, you do feel I am in the proper confident, means comfort zone. बोला था कि नहीं बोला था? Because subconsciously he do feel I am in the proper posture. मैं तो सही में बैठा हूँ, in the proper grooming, proper body language. Right? क्या हो गया आपका? Group behavior. Done? Let me repeat it again. मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो उसके बीच में आपको लिख लोगे. You can get that one. First one क्या था आपका? One is your communication skill. Communication skill means it is not exactly how fluent you are speaking. It is all about both speaking and listening. That means you are having good communication skill, good point to speak while your point is there or when your time is there, and also same time you are giving respect to your friend and you are taking the opinion of them also. Of there also. That means you are both speaking and giving time, giving respect to your friend while they are speaking, and you are a very keen listener, keen observer. Clear? Communication means both speaking and listening. यानी कि आप खुद भी participate कर रहे हो और आपके दोस्त को भी बोल रहे हो, they are also participating and you are listening each and everything, और आप उन्हें सारे चीजें पॉइंट को सुन के ही उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करते हो. If you want to ask some cross question. ऐसे नहीं कि आपने कुछ आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ गया सारे बोल दिए जो उनका पॉइंट में ही नहीं था. सो फर्स्ट बी ए गुड लिसनर एज ऑल्सो गुड स्पीकर, दोनों ही आपको बनना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ए कम्युनिकेशन स्किल. तो ग्रुप डिस्कशन में यही दिखा जाता है, क्योंकि अगर आप कंपनी में जाके कहीं पे काम करोगे और आपके ग्रुप या फिर आपका टीम लीडर कुछ बातें बोल दिया होंगे और आप खड़े होकर अचानक से एक क्वेश्चन पूछे जो कंटेंट के साथ रिलेवेंट ही नहीं था. ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी देखे हो आपका दोस्त ग्रुप में बैठे हो, आपका एक डिस्कशन चल रहा है, आपके दोस्त सडन से उठ के बोलता है कि अरे ये क्यों करना था, और आप बोलते हो तो टॉपिक ही चेंज हो गया है. होता है कि नहीं होता है? सो दैट मीन्स यू नीड टू बी वेरी ए गुड लिसनर एंड ऑल्सो ए गुड स्पीकर. दैट इज हाईली रिक्वायर्ड. क्लियर? दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल. नेक्स्ट क्या था आपका? Leadership skill. That means you need to be a very good leader, because leaders are always initiators. You may start the group discussion first. आप क्या कर सकते हो? पहले group discussion को start कर सकते हो. सब तो नहीं start कर सकते ना, कोई एक ही होगा जो स्टार्ट करेगा. इफ someone has taken the initiation, you can be a good leader. Means you can be helpful to everyone. अगर किसी को point नहीं आ रहा है, you can help them. If something is happening, some conflict is happening, you can solve the conflict. If someone is unable to participate, you can help them. If someone has taken a long period of time while he is participating, you can give him pause over there. अगर कोई लंबा खींच रहा है अपने पॉइंट को, आप क्या कर सकते हो? उसे उसका पॉइंट को वहाँ पे बंद करके दूसरे किसी को टाइम दे सकते हो, क्योंकि इन ग्रुप डिस्कशन विल बी गेटिंग ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम. आपके पास क्या होता है? लिमिटेड टाइम ही होता है. सो इफ यू आर गेटिंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, देन इन दैट केस if others are participating for a long period of time, that means he is killing others' time, और किसी का टाइम वो खा रहा है. As a leader, you need to manage the time properly. आपको हर किसी को टाइम इक्वल डिवीजन में देना पड़ेगा. That is a part of a leader. क्लियर? यानी कि अगर टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, अगर कोई आपका क्या करे, कंफ्लिक्ट हो रहा है, वहां पे डिस्प्यूट हो रहा है, यू नो टू डिसॉल्व दैट वन आल्सो, यू नो टू सॉल्व दैट वन आल्सो. इफ समवन इज नॉट गेटिंग एनफ पॉइंट, आपको वहां पे भी पॉइंट शेयर करना पड़ेगा. यू कैन हेल्प देम. दैट इज बिकॉज दिस इज द वर्क ऑफ ए लीडर. ये लीडर का ही काम होता है. उसके साथ साथ खुद को भी पार्टिसिपेट करना होता है, खुद का भी पॉइंट वहां पे रखना होता है. क्लियर? ये हो गया आपका. दिस इज द लीडरशिप स्किल यू नीड टू शो इन द ग्रुप डिस्कशन. या कंटिन्यू. नेक्स्ट क्या हो गया आपका? Rational thoughts means random thoughts. So when you get a topic, when you get something in your mind, right now what your mind will be doing? He will be connect each and every points over there.
तो आपका माइंड अभी तैयार है क्या बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए? नहीं है. Rational thoughts means random thoughts. What is your mind is ready to connect? Is your mind is ready to collect different variety of thoughts over there or not? ये हो गया आपका रैंडम थॉट्स और रैशनल थॉट्स. उसके बाद आप तो कनेक्ट कर लेते हो, बट इज इट एक्चुअली रिलेवेंट टू द टॉपिक और नॉट? दैट यू नीड टू थिंक. कि मेरा दिमाग में मुझे एक टॉपिक समझ में आ गया या फिर एक टॉपिक मुझे मिला है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आता है, बट इज इट एक्चुअली कनेक्टिंग टू द पॉइंट और नॉट? दैट इज हाईली रिक्वायर्ड. कि मेरा ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इज इट एक्चुअली कनेक्टिंग? फॉर एन एग्जाम्पल, आपका टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर आपका कुछ टॉपिक था, and you started sharing about the crime, online crime which is happening, or maybe online thefts, or maybe this legal procedure, or maybe something is happening which is not connected to the AI system. So you need to think something which is very connected to this particular topic which is relevant to the topic. In the same time, it need to be in a very randomly, you need to think that. You need to think a lot of points also. That is called your rational thoughts. That means your mind is able to generate lots of thoughts. That means you are having a lots of content in your mind. Clear? That is called your rational thoughts. Next क्या हो गया आपका? Logical and analytical thinking. That means what the thought you have generated here. आपके दिमाग में जितने सारे यहाँ पे क्या हुआ था? You have generated the thoughts over here. Is it covering different angle, different dimension, or it is only one angle? यानी कि एक ही टॉपिक के ऊपर आपका चल रहा था. फॉर एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल द टॉपिक इज जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, राइट? सो इफ योर टॉपिक इज जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली एंड यू हैव फोकस मोर अबाउट द children's education, you have considered more about the children's nurturing of the children, or maybe giving more priority to the children. In that case, what will be happen? Your entire topic had in a one direction, कि आपका एक ही direction में जा रहा था. But if you have discussed about the what? Economic condition, social condition, mind diversities, different variety of social diversities you can see that one, different variety of mindset you can see. You can develop your adjustment knowledge. Also you can develop your different variety of thought process. You can learn from different experience. इतने सारे एंगल कवर कर रहे हो, या आप एक ही बात बोल रहे हो कि जॉइंट फैमिली में झगड़ा लगते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में अच्छे रहते हैं, या फिर जॉइंट फैमिली में बच्चे बिगड़ जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में अच्छे रहते हैं, या फिर भाइस वर्सा, कुछ भी आपका टॉपिक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, राइट? बस इसके ऊपर फोकस करते हो, या फिर यू आर कवरिंग डिफरेंट एंगल्स. दैट इज हाईली रिक्वायर्ड. दैट इज कॉल्ड योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग. लॉजिकल मीन्स इट नीड टू बी लॉजिक, एनालिटिकल मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डोमेन यू आर कवरिंग. दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग. यानी कि आपको जो टॉपिक मिलता है, अब तक अगर आप फोकस करोगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चल रहा है? फर्स्ट वन, यू आर ए गुड स्पीकर एज वेल एज ए गुड लिसनर. तो ये मेरा एक चेकलिस्ट क्या हो गया? टिक हो गया. ग्रुप डिस्कशन इज ए स्क्रीनिंग ग्राउंड. Why this is called a screening ground? Group discussion, when group discussion is happening, they are screened out your managerial ability. If you are having the managerial ability, they are going to select you. If you are not having the managerial ability, they are going to simply disqualify you. इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन राउंड. यानी कि आपको जानबूझ के वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है. आपको वहाँ पे इसीलिए रिजेक्ट किया जाता है या फिर डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि आपके पास ये सारे 500 क्वालिटी में कोई क्वालिटी नहीं था. क्लियर? तो पहला क्या हो गया आपका? बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग. दे मेक ए टिक मार्क ऑन टू दैट वन. सेकंड क्या था आपका? लीडरशिप क्वालिटी. यू आर गाइडिंग ईच एंड एवरीवन वेरी प्रॉपर्ली, राइट? यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग टाइम मैनेजमेंट. You are also helping to the people when they are in a problem. You are also solving the problem when someone is having a confusion or maybe conflict are there. So that means you are a good leader. They are also giving a tick mark onto that one. Third, rational thoughts. When you got a topic, you are able to generate lots of thoughts. Means you are able to generate or find out the different ideas. As you said, na, how they are going to share the topic. How many random ideas you can generate relevant to the topic. That is your rational thoughts. Give a tick mark onto that one. Fourth one is your logical and analytical thinking. That means what the thought process or the point I have shared here, is it actually covering different angular dimension or it is not covering? On the right, you need to make a tick mark on that one. Last also is there. What is that one? Your group behavior. Turn on the AC, now it's very hot. So last one is that one. That is called group behavior. That means when you are there in a group, how you behave with the people. Are you showing your aggressiveness, your dominatingness, or you are helping each and everyone to participate there? When you are sharing your point, you are sharing it politely or you are sharing it in a very dominating way.
So what is exactly your behavior in a group, that is going to be find out over there. So अगर आपके पास सही है, they will make a tick mark onto it and they are going to select. अगर आपके पास नहीं होगा तो reject. But right now the question is, why they are finding these qualities only, not others? वो यही क्वालिटी क्यों फॉलो करते हैं, बाकी क्यों और ऑब्जर्व नहीं किया जाता है? Why they are not screened out other qualities? क्यों नहीं होता है? जब जाके एक कंपनी में काम करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, सो व्हाट विल बी हैपन ओवर देयर? यू विल बी गेट a project will be assigned to you. In a project, different groups will be there. In different groups, different group members will be there. Yes or no? So if you are not good in communication, that means you are not giving time to your other friend to participate, your other colleague to share their point of view in this particular project, then obviously they will be feel that they are depressed or they are suppressed. Yes or no? That means this is not a good quality. That means you maybe find out some new ideas from him and you said what you are sharing, it is not up to the mark. What I said, you need to follow that one. That means in that case what will be happen? He got suppressed. Maybe he can share some new advanced ideas which we missed out. So for that reason you need to be a good speaker as well as a good लिसनर. यानी कि अगर आपको बोलना अच्छा आता है तो बोल सकते हो, आपका सीनियर कितना भी डोमिनेटिंग होगा. अगर सुनना आपको अच्छा लगता है तो ऑल्सो यू कैन ऑल्सो, अगर आप सीनियर हो तो आप भी हर किसी का आइडिया सुनने के लिए पसंद करोगे. दैट इज हाईली रिक्वायर्ड इन अ ग्रुप. अगर ये नहीं होगा तो आपका ग्रुप क्या होगा? डूब जाएगा. नेक्स्ट क्या हो गया आपका? लीडरशिप स्किल. इफ यू आर नॉट गोइंग टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट प्रॉपरली, देन द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीट विद इन द टाइम पीरियड. So that's why leadership quality is highly required. Or your time management skill, your having a very good bonding with your team members, helping nature also is a highly required. और एक भी होता है, leaders are always called the initiators. That means if you are not going to take the initiation, leader तो initiate नहीं कर रहा, हम क्यों करेंगे? या फिर लीडर ऑल्सो कैन फॉलो द टीम मेंबर्स. अगर कोई टीम मेंबर भी आप देखे होगे बहुत टाइम में क्या होता है, लीडर क्या करता है ना, ही इज ऑल्सो हैविंग ए वेरी रिलैक्स माइंडसेट, बट टीम मेंबर बोलते हैं कि हम इसे करके दिखाएंगे. उस दिन शायद आपको बोल रहा था, वन कॉलेज इज देयर इन हियर ओडिशा. सो जो उसका जो ऑनर है, ही इज़ नॉट वेरी मच फॉन्ड टू रन दिस कॉलेज, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है वो उसका कॉलेज को चला रहा है. इट इज हैपनिंग, लॉट मेनी एग्जाम्पल आर देयर विथ मी. तो ये क्या होता है, आपका जो टीम लीडर होते हैं उसका मन नहीं है, लेकिन उसका जो मेंबर होते हैं, फॉर दिस मेंबर ओनली द वर्क इज रनिंग. तो कंपनी को टीम के मेंबर के साथ मतलब है या प्रोजेक्ट के साथ मतलब है? टीम मेंबर तो आज आएंगे जाएंगे, टीम लीडर भी आज आएंगे जाएंगे, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट का काम होना चाहिए. अगर टीम मेंबर ही अच्छा होगा, टीम लीडर खराब होगा, तो टीम विल बी रनिंग प्रॉपरली. दैट्स व्हाई दे रिक्वायर ईच एंड एवरीवन ए पोटेंशियल कैंडिडेट. इसीलिए चाहे आपका टीम का लीडर हो या फिर आपका टीम का मेंबर हो, उन्हें क्या चाहिए? पोटेंशियल कैंडिडेट ही चाहिए होता है. ये सर नो. सो ये हो गया आपका सेकंड लीडरशिप क्वालिटी. नेक्स्ट क्या हो गया आपका? रैशनल थॉट्स. यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सोच सकते हो कि नहीं सकते हो. यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा ना. एक ग्रुप डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन. वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. बट इन ए जनरल इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस, आपको क्या होगा, एक टॉपिक मिलता है तो आप सोचते हो डिफरेंट एंगल में. सेम अगर आपको एक प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्ट में आ रहा है, आर यू एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली, आर यू एबल टू फाइंड आउट डिफरेंट सोल्यूशंस और नॉट? इट इज योर रैशनल थॉट्स. नेक्स्ट क्या हो गया आपका? एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग. जो भी आप सारे वेज यू आर एक्सेप्टिंग और जितने सारे अप्लाई करे वेज, इज इट लॉजिकल, एथिकल और अनएथिकल? इज इट लीगल और इलीगल? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट कि ये आप अगर आप यहाँ पे होगा ना, लॉजिकल या डिफरेंट डायमेंशन में कवर करे हो, इसमें ही पता चल जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, कितने सारे एंगल में आप सोच सकते हो एक प्रॉब्लम को, कितना मल्टीपल लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हो, और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज कितना है. क्लियर या नहीं हुए? लास्ट क्या है आपका? ग्रुप बिहेवियर. आपका ग्रुप के साथ कैसा बॉन्डिंग है? यू आर मेंटेनिंग ए फ्रेंडली बॉन्डिंग विथ योर ग्रुप मेंबर्स और आर मेंटेनिंग ए वेरी एग्रेसिव नेचर विथ योर टीम मेंबर्स? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाइंड आउट ओवर देयर. सो दीज आर द 5 मैनेजरियल एबिलिटी व्हिच इज हाईली रिक्वायर्ड इन ए कंपनी. चाहिए कि नहीं चाहिए? येस और नो? टेल मी. येस और नो? चाहिए तो पक्का? इतने चेहरा दुख हार के क्यों बैठे हो? So these are the 5 managerial abilities are there. That's why a company always conduct a group discussion to find out the managerial ability, to screen out the managerial ability within a candidate. Clear? Okay, fine. Oh, huh? 4 points.
लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, उसे समझाना है या लिखना है? समझाना है, ओके. सो व्हेन यू आर शेयरिंग पॉइंट्स, you will be sharing 2 to 3 points. Is it actually covering one angle or multiple angle? जैसे कि एग्जांपल में दिया था आपको, फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, आपको टॉपिक मिला है, बहुत इजी टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ. आप जब वहाँ पे डिस्कस करें, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हो, आप जाके सिर्फ बच्चों के पास रहेंगे कि अगर जॉइंट फैमिली से होगे तो ये प्रॉब्लम होगा, या फिर उसका ये बेनिफिट होगा, अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगा, या फिर ये आपका बेनिफिट होगा. बस एक ही पॉइंट में आप रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, या फिर उससे छोड़ के और अलग अलग एंगल कवर करिए. जैसे कि मान लो आपने फाइनेंस के ऊपर बात किए, आपने माइंड डाइवर्सिटीज़ के ऊपर बात किए, आपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात किए, आपने लोगों का बॉन्डिंग के ऊपर बात किए, आपने सोशल कनेक्शन के ऊपर बात किए. ये सारे एंगल कवर करे हो या फिर एक ही एंगल में रहेंगे. To find out the angle, there is a concept called SPELT. S-P-E-L-T. 5 points are there. What is that one? In social point of view, I will be sharing that one. अभी मत लिखो, बाद में जब आप ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस करेंगे तब बताऊंगा. अभी पूछे तो मैं बता देता हूँ. टू फाइंड आउट द डिफरेंट एंगल, अगर आपके पास अभी एंगल पता नहीं चल रहा है, आपके पास दिमाग में पॉइंट नहीं आ रहा, तो कैसे एंगल को डिफाइन करना है. 5 points are there. What are they? First one called your social point of view. मीन्स सोशियली क्या क्या पॉइंट आप ढूंढ के निकाल सकते हो, कुछ भी टॉपिक हो जाएगा. सेकेंड क्या हो गया आपका? P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. पॉलिटिकल क्या क्या कनेक्शन होते हैं, या फिर पॉलिटिकल क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल के यहाँ पे आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद क्या हो गया आपका? E स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इकोनॉमिकली कितने सारे पॉइंट इसमें कवर हो सकता है. उसके बाद क्या हो गया आपका? L स्टैंड फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. मीन्स लीगली क्या क्या सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो सकता है, या फिर लीगल होगा, इलीगल होगा, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. अगर आपका क्या होगा, ऑनलाइन स्कैम होगा तो लीगल इलीगल आ जाएगा, राइट. गुड पॉलिटिक्स is good politics better for our future, या फिर bad politics is better for our future, या फिर आपका ऐसे हो सकता है टॉपिक मिलेगा corrupt but efficient politician, या फिर honest but unefficient politician which is required. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाएंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक इट मे बी वेरी, इट मे बी डाइवर्सिफाइड, राइट. लास्ट में क्या था आपका? T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो टेक्नोलॉजिकली कितने सारे यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट होता है. सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यू कैन फाइंड डिफरेंट डायमेंशन. ये आपका पास एक थंब रूल होता है, फॉर्मूला होता है. इससे छोड़ के और भी कितने सारे चीज़ें आ सकते हैं. माइंड डाइवर्सिटीज हो गया, साइकोलॉजी हो गया, या फिर आपका कितने सारे चीज़ें होता है. यू कैन ऑल्सो कवर दैट वन. क्लियर. लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स हाउ मेनी एंगल, मीन्स हाउ मेनी डिरेक्शन यू आर कवरिंग. यू आर नॉट गोइंग टू फोकस अबाउट ए पर्टिकुलर डिरेक्शन, रादर आर फोकसिंग ऑन टू डिफरेंट अदर डिरेक्शन. क्लियर या नहीं हुए? क्लियर हो गए तो पक्का? ओके चलो, राइट. ये हो गया आपका थ्योरी की, आपका ग्रुप डिस्कशन क्यों क्या होता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, कंपनी को इसका रिक्वायरमेंट क्यों है. मुझे बताओ, ये जो आपका 5 क्वालिटीज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, इज इट गोइंग टू बी फाइंड आउट इन ए इंटरव्यू राउंड में निकल के आ सकता है? ग्रुप में बैठोगे तो ग्रुप डिस्कशन आएगा ना, या फिर आपका ग्रुप बिहेवियर आएगा ना. ग्रुप में बैठोगे तो आपका मैनेजरल स्किल आएंगे ना. Yes or no? So for that reason, company used to conduct the group discussion to find out these abilities only, which cannot be found from a इंटरव्यू और PI इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में कभी नहीं हो सकता है. क्लियर. ओके. राइट नाउ यू आर देयर इन द ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन में एक्जैक्टली कैसा होता है? इट इज़ नॉट हैविंग एनी फिक्स फॉर्मूला कि 5 लोग बसेंगे, या फिर आपका 7 लोग बैठेंगे वहाँ पे, या फिर 10 लोग बैठेंगे. उसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता. इट्स वेरी फ्रॉम रिक्रूटर टू रिक्रूटर, और मे बी द कैंडिडेट देयर आउटसाइड. अगर आपका बहुत ही कम बच्चे हैं तो कम यहाँ पे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा बैठेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द मेंबर आर हियर, द टाइम विल बी फिक्स. 5 लोग होंगे तो 5 या 7 मिनट, 7 लोग होंगे तो 7 या 10 मिनट, 10 लोग होंगे तो 10 या 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑल्सो. अगर ग्रुप डिस्कशन ऊपर के आएंगे, अगर उसके टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिस्कशन इज हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन और डायमेंशन. फर्स्ट टॉपिक कैसा मिलेगा आपको? फर्स्ट वन इज कॉल्ड योर यूनी डायरेक्शनल टॉपिक, जिसका एक ही डायरेक्शन होता है, अलग अलग डायरेक्शन नहीं होता है. क्या वो टॉपिक होता है? जो एग्जाम्पल इज चाइल्ड लेबर. Is there anyone who will call or who will say that we need to proceed child labor? Why? क्योंकि कंपनी का पैसा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट जाएगा, कंपनी का पैसा घट जाएगा. ऐसा कोई है क्या बोलने के लिए? क्या बोलोगे आप? बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसलिए लीगल बहुत सारे एक्शन लिया जाता है. कंपनी ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं. सो एवरीवन दे आर गोइंग टू व्हाट दे आर गोइंग टू से, दे आर गोइंग टू से वी नीड टू स्टॉप द चाइल्ड लेबर. ये सुनो, यानी कि जितने भी यहाँ पे मेंबर बैठे हैं सब क्या बोलेंगे? उसे बंद करने के लिए बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल ग्रुप डिस्कशन, यानी कि हर किसी का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, टू स्टॉप और मे बी इन वन डायरेक्शन ओनली. क्लियर. सेकंड यार क्या हो गया आपका? बाई डायरेक्शनल टॉपिक. बाई डायरेक्शन मीन्स
Two directions are there, as like joint family versus nuclear family. आपको either you need to choose this one, you need to choose that one. As I said in the past, group discussion is very similar to your debate. That means you need to choose only one side. You need to stick up with one side, either this side or that side. अगर आपने starting में choose किया joint family is good, you need to share from starting to last joint family is good. अगर आपने बोला कि nuclear family is good one, then you need to share all the good part of nuclear family. You cannot mix with each other. दोनों के साथ कभी मिला नहीं सकते हो. ग्रुप डिस्कशन में जो होता है, डिबेट में ऐसे होता है कि नहीं होता है, या फिर आप डिबेट में जाके कुछ बोलते हो, उसके बाद जाके पार्टी चेंज कर लेते हो, ऐसे होता है क्या? देखोगे पॉलिटिकल डिबेट में क्या होता है ना, फ्यू पार्टीज आर देयर, डिफरेंट पार्टीज आर देयर, तो यहाँ पे जो होते हैं कुछ सेकंड के बाद पार्टी चेंज कर लेते हैं क्या? स्टार्टिंग में जिसका अगेंस्ट में थे, दे यूज टू स्टिक अप विद द सेम पार्टीज और सेम साइड. सो ग्रुप डिस्कशन में आपका सेम है, दैट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल ग्रुप डिस्कशन. अगर दो टॉपिक वहाँ पे होगा तो दिस वर्सेस दैट, तो आपको एक ही साइड में चूज करना पड़ेगा. जैसे कि जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, नॉलेज वर्सेस स्किल, पोटेंशियल वर्सेस सॉरी आपका प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन. अगर आपका ऐसे कुछ दो बाई डायरेक्शनल टॉपिक आता है, यानी कि टॉपिक में दो ही डायरेक्शन होता है, तो यू कैन चूज बोथ द साइड, ऑन द साइड इन द बोथ टॉपिक, दैट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल टॉपिक. एक आपका क्या आता है, मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक. मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक मीन्स द टॉपिक इज नॉट हैविंग वेरी ओनली वन डायरेक्शन. टॉपिक का एक ही डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कितना होगा वहाँ पर, मल्टीपल डायरेक्शन होगा. यानी कि आपके हिसाब से आप कुछ भी उसे एंगल दे सकते हो, कुछ भी उसे बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक. ये आपका जनरली बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, यानी कि उसका कोई एंगल नहीं होता है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, उस टॉपिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे. इसका कोई मीनिंग है? कोई भी मीनिंग नहीं है. आपके दिमाग में जो भी आता है, इन दैट लाइट यू कैन गिव द आंसर. फॉर एन एग्जाम्पल, एज आई सेड, मान लो एक टॉपिक लेते हैं कि आपका रेड एंड ब्लू. अच्छा है, राइट. तो जब रेड आपके दिमाग में आता है, क्या क्या आप सोचते हो? डेंजर, ओके फाइन. और स्टॉप, अट्रैक्टिव वन, बिकॉज हाँ, और इट इज कॉल्ड एग्जैक्टली योर रैशनल थॉट्स, कि आपके दिमाग में कितना पॉइंट आ रहा है. पीछे देखो किसका दिमाग कुछ नहीं आ रहा है. अरे कुछ आता है कि नहीं आता है? क्या आता है बताओ? जब रेड आपके दिमाग में आता है, क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आता है? रेड इज ए कलर, ओके फाइन. और रेड इज यूज फॉर डेंजर लाइट, ओके. और ब्लड, इट द कलर ऑफ ब्लड दैट सिंबलाइज प्योरिटी, ग्रेट. और हाँ, जोर से बोलो. अलर्ट साइन, एंग्री, ओके. और क्या है? कितने बार डेंजर बोलोगे? लेजी, रेड. रेड इन साइकोलॉजिकल, रेड इज द सिंबल ऑफ एनर्जी. लेजी कैसे बोल सकते हो आप? एग्रेशन, ओके फाइन. और डेंजर, कितने बार डेंजर बोलोगे? रेड लाइट इज हैविंग हाई वेवलेंथ, इसलिए वो क्या होता है आपका सिंबल में यूज किया जाता है. हमेशा ट्रैफिक लाइट में यूज किया जाता है, हमेशा आपका रेड लाइट यूज किया जाता है फॉर शोइंग यू द सिंबल और टू मेकिंग द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्यों? उसका पिच और वेवलेंथ हाई होता है. रेड इज द सिंबल ऑफ लव, रेड इज द कलर ऑफ ब्लड, यस और नो? यानी कि अभी मुझे बताओ, लव के साथ ब्लड का कोई कनेक्शन है? डेंजर के साथ ओके फाइन. तो मुझे अभी बताओ, कहां पे था मैं भूल गया. इट इज रियली हाईली रिक्वायर्ड ना, सम स्माइल इज हाईली रिक्वायर्ड. हाँ हाँ, लव के साथ मुझे बताओ डेंजर का कोई रिलेशन है? या फिर आपका वेवलेंथ के साथ ब्लड का कोई कनेक्शन है? दैट मीन्स इट इज हैविंग नो कनेक्शन. आपके दिमाग में जो आया, यू शेयर दैट वन. दैट इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक, यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता है. जिसका दिमाग में जो आता है, जिसके साथ भी कनेक्ट करना चाहता है, यू कैन कनेक्ट विद दैट वन, राइट. अभी मान लो आपका ब्लू, ब्लू इज ए कलर. अगर वो सोच रहे दिमाग में क्या आ रहा है? ब्लू इज द कलर ऑफ स्काई. और ब्लू इज द कलर ऑफ ओशन, वाटर का कलर नहीं होता है. ब्लू इज द कलर ऑफ अर्थ का ग्रीन होता है. ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ओके ठीक है, वो आपके हिसाब से अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट, ओके फाइन. और XYZ किसी कुछ भी हो गया. और ब्लू सिंबलाइज काम एंड कूलनेस, ग्रेट. और रेयर इन नेचर, वो तो बोलना काम एंड कूल इन नेचर. रेयर नहीं, रेयर यानी कि बहुत ही कम पीस बचे रहते, दैट इज कॉल्ड रेयर. दिस शेयर कलर इज ब्लू, ओके फाइन, ग्रेट. ये यूज इज प्रेजेंस ऑफ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड.
तो यानी कि आपके दिमाग में कितने सारे रैंडम थॉट्स आ सकते हैं, कितने एंगल में आ सकते हैं और कैसा कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड योर वर्ड रैंडम थॉट. इट इज एक्चुअली लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग. अगर आपको इस तरह का टॉपिक मिलता है दैट इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक. एक और भी टॉपिक होता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, स्ट्रेट रोड कैन नॉट मेक स्किलफुल ड्राइवर्स, शुड वी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी. सो दिस आर द टॉपिक लाइक दिस. कुछ टॉपिक आपको समझ में आ गया, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया. जब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे फिर आपको सब समझ में आ जाए, राइट. और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जैसे कि नहीं वो तो बाई डायरेक्शनल हो गया. और कुछ होते हैं जैसे ऐसे, ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. फिर टॉपिक वाइज भी टॉपिक अलग अलग होते हैं. क्या क्या अलग अलग होते हैं? अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इट मे बी जनरल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन. व्हाई द recruiter want to conduct a general based group discussion? Because they want to know the awareness about your surrounding. आप पे चारों तरफ जो चल रहा है आपको उसका अवेयरनेस है या नहीं है. दैट इज कॉल्ड जनरल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन. तो वो टॉपिक कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चल रहा था ना बीच में रशिया यूक्रेन वन, राइट नाउ इलेक्शन विल बी हैपनिंग. सो अकॉर्डिंग टू अबाउट द इलेक्शन और मे बी अबाउट योर इंडियन इकोनॉमी. अभी आपका क्या आया था, बजट पास हुआ था. इट मे बी द टॉपिक अबाउट द बजट. तो जो आपका रिलेवेंट टॉपिक चलता है, जो हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक द रिक्रूटर मे बी गिव यू द टॉपिक. दैट इज कॉल्ड जनरल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन. यानी कि एक जनरल टॉपिक आपको मिलेगा जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आपको सराउंडिंग के बारे में, सोशल के बारे में आप अपडेटेड हो या नहीं हो. अकॉर्डिंग टू द जॉब रूल, अगर आपका जॉब रूल ही ऐसा होगा, मार्केटिंग वाला जॉब रूल होगा, तो इस हिसाब से वहाँ पे क्या होता है देखा जाता है. अगर आपका जॉब रूल अलग सा होगा, मान लो आप वर्कशॉप में जा रहे हो, उसके बारे में कुछ नहीं चाहिए होता ना. सो अकॉर्डिंग टू जॉब रूल ऑल्सो रिक्रूटर आर गोइंग टू गिव यू द टॉपिक्स. सेकेंड टॉपिक क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोवर्शियल टॉपिक. कंट्रोवर्शियल टॉपिक यानी कि दे नोइंगली द रिक्रूटर वांट टू प्रोवोक यू, ताकि आप वहां पे झगड़ा करो. knowingly they are going to give you the topic. Why? Because they want to find out, they're going to what you can say manage your or find out your maturity level, कि आप कितना mature हो. If you're not mature, you're not going to quarrel with each other, rather you're going to find a solution. अगर आप mature नहीं हो तो झगड़ जाओगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है कि who is better, fresher और experience. दोनों मिला के बैठाए होंगे वहाँ पे, फ्रेशर और एक्सपीरियंस. फ्रेशर बोलेंगे हम अच्छे हैं, एक्सपीरियंस बोलेंगे हम अच्छे हैं, झगड़ जाएंगे वहाँ पे, राइट. सो रिक्रूटर knowingly they want to give you the topic like this. Why? Because they want to find out your maturity level. ये देखने के लिए आपको इस हिसाब से टॉपिक मिलता है, राइट. और एक टॉपिक क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड abstract based group discussion. जैसे अभी आपको बोला था कि मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक, यानी कि abstract based group discussion मीन्स इट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉपर एंगल. उसका कोई भी एंगल नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट एंगल. जैसे कि आपका स्किल और कंसेप्ट, आप बोलोगे स्किल को कनेक्ट करोगे किसके साथ, कंसेप्ट को और किसी के साथ कनेक्ट करोगे, राइट. एज लाइक वाटर और फूड, which is highly required. पानी पी के जी लोगे, खाना खा के बोझ लो क्या, वाई बोथ? द मेन कंडीशन हियर इज यू कैन नॉट चूज बोथ द साइड. टॉपिक आपको इसलिए मिलता है, आपको चूज करना पड़ेगा. पानी पी के जिंदा रह लोगे सालों साल तक, समझ में आया? अभी ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आपको इसलिए मिलता है हाउ यू आर हैविंग एनफ पॉइंट टू प्रूव योरसेल्फ. क्योंकि आप अभी जाके, अभी तो यहां पे बैठे हो, मैं भी फ्यूचर में जाके कंपनी को कहीं पे रिप्रेजेंट करोगे, आपके प्रोजेक्ट को लेके कस्टमर के सामने प्रेजेंट करोगे, बेचोगे उसे. कैसे करोगे? अगर यहाँ पे आपके ग्रुप मेंबर को कन्विंस नहीं कर पाते हो, आपका आइडिया को आपके टीम लीडर के पास जाके कैसे कन्विंस करवाओगे? आपके कंपनी को जाके कैसे दूसरे कंपनी के सामने प्रेजेंट करवाओगे? या फिर आपके प्रोजेक्ट को लेके कैसे कस्टमर के सामने प्रेजेंट करवाओगे? इट इज ऑल अबाउट योर कन्विंसिंग स्किल एंड द कम्युनिकेशन स्किल. इसीलिए आपको एक साइड ही चूज करना पड़ता है, इधर दिस साइड अदर साइड. अगर आपको पानी चूज करना है तो पानी को जस्टिफाई करो क्यों, वाई वाटर इज रिक्वायर्ड. अगर आपको फूड चूज करना है तो यू नीड टू जस्टिफाई व्हाई फूड इज रिक्वायर्ड. दैट इज कॉल्ड abstract based group discussion और multi directional group discussion, या फिर आपका कुछ भी हो सकता है. इट इज लाइक दैट वन. क्लियर? नेक्स्ट आपका हो गया, एज आई सेड, दैट इज कॉल्ड योर case study based group discussion. That means they are going to give you a case over here and they are going to ask you solve that one. For an example, they will ask you, you are a manager in a company,
Right. As a manager, right now think a problem has happened. What is the problem? Few people or few subfloor working persons who are there, they are working in subfloor, they made a strike. As a manager of a company, what will be your step? कभी मैनेजर करवा देंगे, कभी आपको स्कूल का प्रिंसिपल करवा देंगे. एज ए स्कूल प्रिंसिपल और एज ए कॉलेज प्रिंसिपल ए केस वाज केम टू यू. क्या केस था या फिर क्या प्रॉब्लम था? One person who secured a very good percentage in this particular semester, but his friends are asking that he is not a good student ever, but in this semester how he secured a good percentage. He may be done some malpractice, so please give him the resignation. Please allow him for the next exam, or maybe give him a rusticate letter. और मे बी लाइक दैट वन. सो यहाँ पे सारे बच्चों ने क्या क्या मिलके वहाँ पे स्ट्राइक कर लिए. एज ए प्रिंसिपल व्हाट द स्टेप यू आर गोइंग टू टेक? वहाँ पे डिस्कस करना सारी चीज़ें इसलिए तो होता है डिस्कस करने के लिए. उसके बाद या फिर आपको एक बिजनेसमैन बना लेंगे, बोलेंगे कि यू आर ए बिजनेसमैन हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट कैप इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और आपका बाकी कंपटीटर भी होते हैं. यू वांट टू स्ट्रेच योर हैंड्स इनटू डिफरेंट व्हाट लोकेशन, हाउ यू विल बी डूइंग दैट वन, क्या क्या स्टेप लोगे. So they are going to give you different variety of thoughts or ideas or maybe problems. So they are going to find out what is exactly problem solving abilities. आपके पास क्या क्या problem solving abilities होते हैं. तो इतने तरह का आपका टाइप का ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक होते हैं, एंगल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है. बट डू नो द रियलिटी, अब जब बैठोगे वहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा कि हम आपको बाई डायरेक्शनल टॉपिक दे रहे हैं एंड इट इज़ ए general based group discussion. No one is going to share that one. You need to identify what sort of topic is that one. तो टॉपिक कैसे डिफाइंड होता है? अकॉर्डिंग टू द जॉब रूल. आपका जॉब रूल क्या होता है? ऑन द लाइट ऑफ दैट वन टॉपिक इज गोइंग टू बी डिसाइड. क्लियर? टॉपिक के हिसाब से आपका टाइम डिसाइड होता है. अगर आपका क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है, जनरल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत ही कम टाइम मिलेगा. अगर आपको केस स्टडी बेस्ड ग्रुप डिस्कशन मिलता है तो थोड़ा सा लंबा टाइम मिलेगा. क्लियर? ये हो गया आपका थ्योरी अबाउट द ग्रुप डिस्कशन. क्लियर? राइट नाउ द पॉइंट इज, अभी थ्योरी क्लियर हो गया ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है, कितने तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीजें होते हैं. राइट नाउ कम टू द रियलिटी. यहाँ पे आपका मान लो 2 chairs आर देयर, फ्यू पीपल आर देयर गोइंग टू पार्टिसिपेट हियर. राइट? यहाँ पे बैठ के करोगे कैसे, पार्टिसिपेट कैसे करोगे, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कैसे करोगे, बताओ. कितना हो गया? 42. हाँ, कैसे करोगे? Perfect. So according to his point of view, first you need to introduce yourself, who you are. Then after you need to discuss about the topic. Is it yes or no? Because if you are not going to introduce yourself, what is your name, how the recruiter will know that who you are actually? क्योंकि recruiter पास क्या होता है? Few. They are having few what? उनके पास लिस्ट होता है कि ये लोग आए हैं, या फिर उनके पास एक ऐसे होता है, लिस्ट होता है. They are going to write your names. आपका नाम लिखेंगे. अगर नाम ही नहीं बताओगे, यू आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर, हाउ दे नो दैट हु इज पार्टिसिपेटिंग. ही इज पार्टिसिपेटिंग मे बी वेरी वेल और मे बी नॉट वेरी वेल, बट हाउ दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. वो बोलेंगे क्या वो दूसरे नंबर वाला चेयर है ना, आप सिलेक्ट हो गए, ऐसे बोलेंगे क्या? क्योंकि रिजल्ट वहाँ पे नहीं आता है. सो हाउ दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. दैट्स व्हाई यू नीड टू शेयर योर नेम, व्हिच इज कंपल्सरी इन अ ग्रुप डिस्कशन. राइट? सो फर्स्ट हाउ कैन वी पार्टिसिपेट? वेरी सिंपल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Remember one more thing, in group discussion don't focus to the recruiter. ऐसे मत बोलना कि क्या चल रहा है, ऐसे मत बोलना कि गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग. मान लो रिक्रूटर वहाँ पे साइड में बैठा है, ठीक है, आप ऐसे मत बोलना गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सो एंड आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इट्स नॉट लाइक दैट वन. ग्रुप डिस्कशन इज फोकस अबाउट द ग्रुप मेंबर्स ओनली. व्हेन यू विल बी फोकसिंग अबाउट द ग्रुप मेंबर, व्हेन यू विल बी पार्टिसिपेटिंग, रिक्रूटर का काम क्या होगा? बस बैठ के देखना है, उसका कोई काम है क्या? बस एनालाइज करेगा. वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो बैठ के तो कुछ ना कुछ करेगा. ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व योर बॉडी लैंग्वेज. सो व्हेन यू विल बी देयर इन द ग्रुप डिस्कशन, योर बॉडी लैंग्वेज नीड टू बी मेंटेन प्रॉपर्ली. कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2, यू नीड टू मेक ए आई कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप मेंबर्स ओनली, विथ नो वन एल्स. किसी के सामने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. किसके साथ करोगे? ग्रुप मेंबर बैठे, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो ना, ग्रुप लोगों के साथ ही बैठे हो, तो दूसरे के साथ क्यों करना है? रिक्रूटर जो करना है उसे करने दो. यू नीड टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद ग्रुप मेंबर्स ओनली. क्लियर? देयर 2 थिंग्स यू नीड टू मेंटेन वेरी केयरफुली.
ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट एंड यू नीड टू मेंटेन इट वेरी प्रॉपर्ली। क्लियर? उसके बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन का राउंड्स होते हैं। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन आ रहा है? देयर आर 3 राउंड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। फर्स्ट वन इज ओपिनियन राउंड, सेकंड वन इज एनालिटिकल राउंड, थर्ड वन इज योर कंक्लूजन राउंड। ये डिस्कस नहीं करेंगे, डोंट राइट दैट वन। व्हाई? बिकॉज क्योंकि थ्योरी इतने सारे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आज एक राउंड ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे करवा देंगे, कल ये सारे थ्योरी करेंगे, ठीक है? मैं बस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक आइडिया होगा ना तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन अच्छी तरह से कर सकते हो। बस आप आज आपको इतना ही बताऊंगा कि ओपिनियन राउंड में क्या बोलना है, एनालिटिकल में क्या बोलना है, कंक्लूजन में क्या बोलना है, बाद में बताएंगे सब, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट क्या हो गया आपका? हाउ मेनी राउंड्स आर देयर इन अ ग्रुप डिस्कशन? 3 राउंड्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड योर ओपिनियन राउंड, सेकंड वन इज योर एनालिटिकल राउंड, थर्ड वन इज योर कंक्लूजन राउंड। बस इतना याद रखो, ओपिनियन राउंड में आपको जो टॉपिक मिला है ना उसका ओपिनियन देना होता है, नथिंग एल्स। एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि क्यों आपका ओपिनियन ऐसा है। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या हो गया? एनालिटिकल राउंड। इन द एनालिटिकल राउंड डोंट शेयर योर ओपिनियन। एनालिटिकल में क्या बोलोगे? यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग व्हाई योर ओपिनियन लाइक दिस। इसे थोड़ा सा और ब्रीफ में कल एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना याद रखना कि आपका ओपिनियन जिसके लिए हुआ था उसका जो पॉइंट है ना आपको एक्सप्लेन करना था, या आप कहाँ पे करोगे? एनालिटिकल राउंड में करोगे। कंक्लूजन राउंड क्या होता है? रोज आपका जो यहाँ पे होता है ना समरी, सो कंक्लूजन राउंड नोन एज ए समरी, यानी कि इस एनालिटिकल राउंड में जितने सारे चीज़ें आपका डिस्कस हुआ था यहाँ पे आपको एक समरी देना होता है कि ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ था। इसका टाइम, एक टाइम का डिवीजन होता है, ठीक है? उसका होता है 40%, 20% उसका डिवीजन होता है। बाद में कल पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे उसे, आज करने से कोई फायदा नहीं उसका। और इतना थ्योरी पढ़ लिया, बाकी से ऊपर चले जाएगा, बस याद रखना इतना। तो ओपिनियन राउंड बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए बोल देता हूँ कि ओपिनियन राउंड में क्या होता है। इन द ओपिनियन राउंड यू नीड टू शेयर योर ओपिनियन ओनली। फॉर एन एग्जाम्पल, टॉपिक बहुत ही सिंपल आज दे रहा हूँ आपको, यही टॉपिक आप यहाँ पे भी डिस्कस करोगे। टॉपिक इज जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। So in the topic, how you are going to start the group discussion? For an example, you are the initiator. So how you will be starting that one? Good morning, everyone. My name is Ranjan, and today we got a topic. The topic is mine or my group's? Group का ही है ना? तो what I will be sharing, my or we? मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि जब यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे ना, I have seen numbers of group discussion. सेम मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। सो टुडे वी गॉट ए टॉपिक जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई डू फील जॉइंट फैमिली कैन बी ए गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सो एंड सो, एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू न्यूक्लियर फैमिली इज ए गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सो एंड सो, एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, जो XYZ जो भी आपका होता है। समझ में आया स्टार्टिंग में क्या बोला था? I greet to the people, good morning everyone. Next, I share, I introduce myself, my name is so and so. Next, as I am an initiator, only I am going to reveal the topic. मैं ही रिवील टॉपिक करूंगा, बाकी कोई नहीं करेगा। टॉपिक रिपीट करने का फायदा क्या है मुझे बताओ? एक ही टॉपिक को सब रिपीट करो, सबका अलग अलग है क्या? एक ही टॉपिक को रिपीट करें, इसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका और आपका एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड टू। सो डोंट रिपीट द टॉपिक अगेन एंड अगेन। क्लियर? तो एज ए इनिशिएटर व्हाट आई डिड, I shared, I wish to everyone, then I reveal my name, I shared my name, and then after I reveal the topic also, last में क्या था? I shared my opinion, मैंने अपना ओपिनियन बोला। जब इनिशिएटर खत्म हो जाता है, आप सेकंड में जाके पार्टिसिपेट करते हो, व्हाट यू विल बी शेयरिंग, एक पार्ट आपका खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सेम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, उसके बाद योर नेम, उसके बाद योर डायरेक्टली योर ओपिनियन। क्लियर? बस इतना याद रखो, कल इससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे ओपिनियन क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है और आपका कंक्लूजन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गए? इतने सारे थ्योरीज होते हैं, कितने सारे चीज़ें होता है, उसके बाद और भी थ्योरीज होते हैं। ईयरलियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग थ्योरीज फॉर 2 days, 2 दिन थ्योरी चलता है, उसके बाद बुलाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जितने सारे थ्योरी बताया था कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, सारे मिस्टेक यहाँ पे आके करते हैं। मुझे बताया पढ़ने का फायदा क्या है फिर उसका? That's why we have decided we are going to share you the basic theory, what is highly required. Then after we will be doing the practice here. So when we are going to do the mistake, then after we will be learning in the mid of that one. Clear? So chalo. We require 5 members here. And remember one thing, when you will be there in the group discussion, bring always a pen and paper. Next, always bring a stopwatch with you. It may be mobile phone or maybe your time. स्टॉपवॉच हमेशा याद रखना, क्योंकि आपका यहाँ पे टाइम होता है, उतने टाइम के अंदर ग्रुप डिस्कशन खत्म होना चाहिए। अगर उतने टाइम में नहीं होता है तो इट इज़ नॉट कॉल्ड ए फ्रूटफुल ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 मेंबर फॉर 5 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 मेंबर इज हियर, अरेंज 5 चेयर्स हियर।